Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about multiple choice questions of elasticity of supply. Before starting this video, children, if you have not seen my previous video of elasticity of supply, I would request you to please see that video first. The link is in the bell icon here. You can check the whole video, you can understand the whole concept, and then you come to this concept, okay? Then you come to this part of the video, because then only you will be able to understand each questions whatever I am explaining you, okay? So let's start multiple choice questions of elasticity of supply. Today we will be doing 10 questions, and after that questions, I hope this concept is very much clear to all of you, okay? Starting with question 1 on your screen, children. What does the price elasticity of supply measure? Option A is the responsiveness of demand to change in supply. Demand? How can demand be the option in the chapter supply? Not possible. So this option is incorrect. Second is the responsiveness of the quantity supplied of a commodity to a change in price. Yes, obviously, in elasticity of supply, we have studied that. What we have studied, children? The responsiveness of quantity supplied of a commodity to a change in price. Quantity के supply में और quantity के supply और price में ही changes होगा. That is what we have studied. Price के change होने पर quantity supply कैसा response करेगा? Either वो बढ़ेगा या घटेगा. This is what we have studied. Okay, so B is correct option according to the question. But let's also go for C and D. We will just read it out whether हम कुछ skip ना कर दे. Okay, so the C option is the responsiveness of supply to change in income level. नहीं, income level कहाँ से आ गया? नहीं हो सकता है. Option D is the relationship between supply and consumer preferences. Consumer preferences तो हमने पढ़ा ही नहीं है पूरे चैप्टर में, है ना? Okay, so option B is the correct answer. Question number 2 is on your screen. How is price elasticity of supply calculated? Price elasticity of supply कैसे calculate होगा? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ES का जो representation हमने क्या पढ़ा था? Proportionate change in quantity supply by proportionate change in price. So देखिए आपको option में कहाँ है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. नो, प्राइस ऊपर क्वांटिटी सप्लाई नीचे नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा था. ऑप्शन बी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमने यही पढ़ा था प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. फिर भी हम सी डी को एक बार देख लेते हैं. डिफरेंस इन सप्लाई एंड डिमांड डिवाइड बाय प्राइस चेंज. नो, नहीं पढ़ा है हमने ये. टोटल चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन सप्लाई. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई तो था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? कौन सा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को डिस्क्राइब करेगा? इनमें से जो भी ऑप्शन डिस्क्राइब करेगा दैट इज योर आंसर. सो ऑप्शन ए इज क्वांटिटी सप्लाइड इज जीरो एट एनी प्राइस. जीरो हमने तो पढ़ा ही नहीं था, है ना? हमने नहीं पढ़ा था. परफेक्टली इलास्टिक तो इंफिनिटी है ना? जो हमारा इन इलास्टिक है वहां पे हमारा ईएस क्या है? वहां पे हमारा ईएस जीरो है. ठीक है. नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल मीनिंग एन इनफाइनाइट अमाउंट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट प्राइस. यस, परफेक्टली इलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो सप्लाई कर्व रहेगा पहला तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना? एंड व्हाट एल्स वी हैव स्टडीड इज कि वो इनफाइनाइट रहेगा. ठीक है. और प्राइस हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है. क्या है बच्चे? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. तो इलास्टिसिटी किसमें हो रहा है? सप्लाई में हो रहा है ना? तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और सप्लाई में हमारा चेंजेस होगा या घटेगा या बढ़ेगा. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. ठीक है. फिर क्या है? सप्लाई कर्व ऑप्शन. अब हम ऑप्शन सी देखते हैं. सप्लाई कर्व इज वर्टिकल मीनिंग क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज विद प्राइस. नहीं, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल होगा. ओके. नेक्स्ट इज ऑप्शन डी सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस. नहीं, इनवर्सली हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. व्हाट इज द इलास्टिसिटी वैल्यू इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई सिनेरियो?
क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था? परफेक्टली इनइलास्टिक में हमने पढ़ा था जो हमारा ES होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो जहां भी आपको ऑप्शन 0 दिख रहा है उस पे आप टिक कर दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, इन विच टाइप ऑफ सप्लाई इज द क्वांटिटी सप्लाई exactly equal to the percentage change in the price? कहां पे exactly equal है? हमने क्या पढ़ा था? ES equals to 1 कब होगा? जब यूनिटरी इलास्टिक होगा। क्या होगा बच्चे? यूनिटरी इलास्टिक होगा, तब हमारा ES क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसमें जहां पे यूनिटरी इलास्टिक है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्वेश्चन 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इनइलास्टिक सप्लाई? इसमें से कौन सा इनइलास्टिक सप्लाई है? देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे वर्ड आगे परफेक्टली नहीं है, केवल इनइलास्टिक सप्लाई है। तो कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करेगा चारों ऑप्शन में? लेट्स go through it. Option A, the percentage change in quantity supplied is greater than the percentage change in price. नहीं, greater नहीं होगा। Next is the percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price. Yes, less होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं inelastic supply, मतलब सप्लाई में इनइलास्टिसिटी है, मतलब क्वांटिटी सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई हमारा लेस होगा देन द प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है हमारा वो कम होगा देन चेंज इन प्राइस से। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड इज इनफाइनाइट एट अ कांस्टेंट प्राइस, या क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट चेंज विद प्राइस, दोनों नहीं होगा, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक सेकेंड, इसको मिटा लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस इंडिकेटिंग नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद अ चेंज इन प्राइस। y एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा? देखिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा टू y एक्सिस, जो इंडिकेट करेगा कि क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा विद अ चेंज इन प्राइस। ये हमने किस में पढ़ा था? क्वांटिटी सप्लाई में कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगा। मैम ने क्या बताया? जब भी कोई भी एक चीज कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब है हम परफेक्टली का बात कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है वेदर वो परफेक्टली इलास्टिक है या वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? ये देखना है अब ये परफेक्टली कौन सा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडिकेटिंग नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई मेरा रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, पर प्राइस में होगा चेंजेस। क्वांटिटी सप्लाई कब कांस्टेंट रहेगा? इन इलास्टिक सप्लाई में। क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा इन इलास्टिक सप्लाई में, तो प्राइस चेंजेस होगा। तो आपको परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई जहां पे दिख रहा है वो आपका आंसर है ना। पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता इंडिकेटिंग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड नो चेंज इन प्राइस, तो जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होगा तो वो हमारा आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर हो रहा है? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इफ द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये है मेरा डायग्राम ग्राफ है, ये मेरा, ये x है, ये y है, ये o है, मतलब ओरिजिन है। ये कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था? जब ओरिजिन से आएगा ये इक्वल किसके रहेगा? 1 के। और ये किस केस में होगा? जब ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ये होगा यूनिटरी इलास्टिक के केस में। ठीक है चिल्ड्रन, तो जहां पे आपको यूनिटरी दिखेगा वो आपका, अच्छा यहां पे आपको यूनिटरी नहीं दिया है, यहां पे आपके ऑप्शंस में है इलास्टिसिटी इज यूनिटी दैट इज 1। देखिए यूनिटी दैट इज 1, तो जहां पे आपको इलास्टिसिटी 1 दिख रहा है वो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सप्लाई कर्व रन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये एंगल है, अब इसके पैरेलल, मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, इसके पैरेलल जो लाइन जाएगा
वो किसको डिनोट करेगा? हमने क्या पढ़ा था? जब हमारा प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी सप्लाई जो है हमारा वो चेंज होगा। तो एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है। तो जब ये सप्लाई चेंज हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो जहां आपके ऑप्शन में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, वही आपका आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question and last, this is the last question. What is the numerical value of elasticity for a supply that is described as unitary elastic? Again, ये एक repeated question है। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक में हमने पढ़ा है जब भी यूनिटरी इलास्टिक होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ES इज इक्वल टू 1। आई होप ये आपको पूरा पार्ट समझ में आया है, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन एनी विच केस कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी अटैच है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।